Okay, let me share my screen. Is the screen visible? Yes, sir. Okay. So nearly 45 students have submitted the assignment on closure properties. Fine. So it is one of the important aspect in flat. Let us go through it. So learning outcomes for today's lecture to know about the closure properties and understand homomorphism and inverse homomorphism. Okay. So as you have gone through, the closure properties are that union of two regular languages is regular, intersection of two regular languages is regular, the complement of a regular language is regular, the difference of two regular languages is regular, the reversal of a regular language is regular, the closure of a regular language is regular, the concatenation of two regular languages is regular, a homomorphism, that is, substitution of strings for symbols. This function is known as homomorphism. Of a regular language is regular and the inverse homomorphism of a regular language is regular. Okay. So ultimately we will be seeing all these things in one by one manner. Union, concatenation and closure. You all know if L is regular language, then there must be a corresponding regular expression for it. True or false? True, sir. Fine. So if we can see here, let L be the regular language, then corresponding the regular expression is what? Or let us suppose if we are having two languages, L1 and L2, then we can represent it this by regular expression R1 and R2. Okay, याद आ रहा है ना? Yes, sir. What about this thing? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Union. Union. By the basic definition of regular expression, if R1 and R2 are regular expression, then what about this thing? This is also a regular expression. True or false? True, sir. So L of R1 plus R2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Anyone? Language represented by R1 plus R2 is what? L1 union L2. L1 union L2. So we can say that L of R1 union L of R2 कह सकते हैं ना? Language represented by R1 and language represented by R2. और ये क्या है? Language represented by R1, language represented by R2. So L1 union L2. So by the basic definition of regular expression, we can say that union of two regular languages is regular. Clear है या नहीं? Yes or no? Clear, sir. Yes, sir. सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है? आपके पास अगर L1 और L2 रेगुलर लैंग्वेज है तो करस्पॉन्डिंग M1 एंड M2 क्या हो सकते हैं? इसके फाइनाइट ऑटोमेटा होंगे. फाइन.
याद आ रहा है? Yes, sir. और यूनियन के करस्पॉन्डेंस में हम लोगों को ये मालूम था, सपोज दिस वन इज M1 and this one is M2, initial connection, again a new final state। इसको कैसे जोड़ रहे थे, क्या ट्रांजिशन था? Epsilon. Epsilon. वेरी गुड। तो अगेन इस माध्यम से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, if L1 and L2 are regular languages then there must be a finite automata accepting L1 and L2, correspondingly we can have the union of this language, L1 union L2. So we are having this machine accepting this language, so again we can say that union of two regular languages are regular। ठीक है? सिमिलरली कॉन्केटेनेशन के लिए याद होगा, यही होता है ना, R1 Yes, and sir. R2 are regular expressions, then concatenation is what? R1 dot R2, language represented by this is what? L of R1 concatenated with L of R2, this is nothing but L1 dot L2, और correspondingly अगर ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है तो कॉन्केटेनेशन वाला भी क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। सो द रिजल्ट फॉलोस। अगेन इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटन we can have this thing M1 concatenated with M2, initial epsilon, again connection, and this one is connected to the final state। okay, क्लोजर भी याद है, क्लोजर means what? Vipul, suppose you are having regular expression as A, how to represent closure of A? Are you there Vipul? Sir. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, संदीप आप बताएंगे। संजीत, यस संदीप, क्लोजर का मीन्स क्या होता है? और कोई अपने से? अभिषेक, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है ना? यस सर नो? Yes, sir. फिर या क्लोजर, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि क्लोजर ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक, मैंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज ए इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइन। तो पहले ये बताइए कि ये किस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज ए आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो क्या ये कोई लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फाइन। आप लोग दोनों को छोड़ के और बताएं कोई। आर्यन 29,
यस, कौन सा लैंग्वेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है? रेगुलर लैंग्वेज। नहीं, रेगुलर लैंग्वेज तो है ही, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है तो वो रेगुलर लैंग्वेज रिप्रेजेंट करेगा, फाइन। लेकिन उस एल लैंग्वेज ऑफ ए का, सर, यस, एल ऑफ ए। एल ऑफ ए, तो एल ऑफ ए का सेट हुआ ना एक, उस सेट के मेंबर क्या होंगे? हम्म, सब भूल जाएंगे तो बेसिक जो आपका है ना, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कहीं भी, अगर ये चीजें आपको नहीं मालूम तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हम्म, सर सिग्मा 0 यूनियन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 एंड सो ऑन। नहीं, ये तो यहाँ स्टार पे क्लोजर मैं है जो सर। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, इसका लैंग्वेज क्या हुआ? एल ऑफ ए, वेरी गुड, ये आपने बताया कि चलो भाई अगर आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसके करस्पॉन्डिंग्स में जो आपका लैंग्वेज होगा वो एल ऑफ आर होगा, लेकिन इसके मेंबर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया था ना कि ये चीज रिप्रेजेंट होगी जब मैपिंग किया था, याद करिए, फाई की बात हुई थी, एप्सिलॉन की बात हुई थी, ए की बात हुई थी, ए स्टार की बात हुई थी, ए प्लस की बात हुई थी। ये अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो करस्पॉन्डिंगली एक सेट होगा, तो स्टार क्लोजर मीन्स व्हाट? दिस थिंग। और इसका अर्थ क्या हुआ? जीरो और मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए, तो क्या हुआ? नल, ए, ए ए, ए ए ए एंड सो ऑन। ये चीज याद आ रही है? यस सर। तो आपको यही जवाब देना था ना, हम्म, कि एल ऑफ ए यस इज सर। रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ए। और स्टार क्लोजर की अगर बात करें तो क्या है? वो आपका जीरो और मोर कॉम्बिनेशन, और यही अगर पॉजिटिव क्लोजर हो जाता तो क्या होता? नल रहता वहां? नो सर, नो सर। नहीं, नल उसमें नहीं रहता। तो अल्टीमेटली क्लोजर के लिए भी आपके पास करेस्पॉन्डिंग्स में आपको ये मालूम है कि आर, इफ आर इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन आर स्टार रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्लोजर ऑफ दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। करेस्पॉन्डिंगली अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या है? नथिंग बट दिस थिंग, star closure of this thing. So ultimately what? You are going to get the result that closure of a regular language is what? Regular of, अगर आपके पास एक ऑटोमेटा M1 है तो इसमें आप क्या करते थे? इंक्लूडिंग नल की बात करते थे ना, इनिशियल फाइनल, इसके फाइनल से यहाँ इनिशियल पे एक नल मूव करा दिया और नए इनिशियल से नए फाइनल तक क्या कर दिया? नल मूव करा दिया। तो ये रिजल्ट्स फॉलो हुए कि नहीं? यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लोजर, अगर इनके रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डेंस की बात करें तो वो सब के सब क्या होंगे? रेगुलर होंगे, इजंट इट? यस सर। तो प्रूफ करना आएगा तो आप लोग आसानी से कर देंगे, यस और नो? प्रूफ, यस सर। सर प्रूफ में यही ऑटोमेटन बना के बस प्रूफ कर यस, देना है ना। यस, दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, ऑटोमेटा भी आप बनाकर कर सकते हैं, ओके। ओके सर। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट, फाइन। तो कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, सपोज एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज, देन कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? एल बार, ओके। सो अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेट अस सी कैसे प्रूव करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर। सपोज एल इज रेगुलर, देन वी आर गोइंग टू से दैट एल बार और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज आल्सो रेगुलर, ठीक है। तो समझिए इसको, अगर एल रेगुलर है तो इसके करेस्पॉन्डेंस में एक ऑटोमेटन होगा, 5 टपल जल्दी से बताइए। क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ। क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, ये क्या एक्सेप्ट करेगा?
इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं अनिकेत? यस सर, ये क्योंकि ये ऑटोमेटा है सर। क्या ऑटोमेटा है? यस सर। नहीं तो एल एक्सेप्ट करेगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सर रेगुलर लैंग्वेज है जो कि वेरी वो गुड, फाइल। वेरी गुड। L is regular, so by definition of regular language, we know that there must be an automata, finite automata accepting that language. Okay? तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि L बार के लिए भी कोई क्या हो, ऑटोमेटा हो, तो हम लोग कह सकते हैं नहीं कि वो रेगुलर होगा। यस सर। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो फाइनल स्टेट्स हैं इन पे ध्यान करना है। ओके, अभी फाइनल स्टेट्स जो होंगे इसमें कुछ मेंबर होंगे एक या एक से ज्यादा। ओके, वो कहाँ का पार्ट होगा, क्यू का ही पार्ट होगा ना। यस सर। तो अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल की अगर बात करें तो वो जो सारे स्ट्रिंग एल के पार्ट होंगे वो अब एल बार में एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, यही चीज है ना। यस सर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज एम बार इज दैट ऑटोमेटन दैट एक्सेप्ट्स एल बार, तो क्या है, क्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिग्मा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डेल्टा विल रिमेन एज इट इज, क्यू नॉट केवल जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल स्टेट में। ध्यान से देखिए, क्यू माइनस एफ जो पहले फाइनल स्टेट्स थे अब वो नॉन फाइनल हो जाएंगे, और जो नॉन फाइनल स्टेट से वो क्या हो जाएंगे, फाइनल फाइनल हो स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, सब लोग पेन एंड पेपर के साथ हैं? यस सर। राइट डाउन अ क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा, construct a finite automata that accepts only the strings a b a and a b b, that accepts the strings a b a and a b b। हो जाएगा? यस सर। चलिए, you have 2 minutes to solve this। इसमें याद करिए हम लोग ट्रैप स्टेट्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, तो एनएफए बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग बना सकते हैं। जो ट्रिक आपको बताया था उसी ट्रिक से इसको सॉल्व करना है। जिनका हो जाए वो यहाँ पे यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। आर्यन, प्रभात है, जैन, श्वेता,
Okay, let us see. You are having the string A, then B, then A और B, यही है ना? देखिए ध्यान से, ए बी ए और ए बी बी, फाइन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, विजिबल है? यस सर। तो जो मेन स्टेट्स ट्रांजिशन है, एक स्टेट से आपने यहाँ ट्रांजिशन किया, किस सिंबल पे? ए पे किया। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन हो रहा है किस पे हो रहा है? बी पे हो रहा है। नेक्स्ट किस पे हो सकता है? ए और बी पे। यही दो स्ट्रिंग ना आपको एक्सेप्ट करने थे? यस सर। तो ये हो गए। अब हम लोग डीएफए की अगर बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होना चाहिए? डेल्टा कैसे डिफाइन होता है बताइए जल्दी से। क्यू क्रॉस सिग्मा इंटू क्यू। Q क्रॉस सिग्मा इज मैपिंग इनटू Q। तो यहाँ पर देखिए, सिग्मा अगर बात करें तो सिग्मा क्या है? ए ए एंड का वन। फाइन। तो फर्स्ट स्टेट सपोज Q0 है, ये हमने कर दिया Q1 कर दिया, ये Q2 कर दिया, ये Q3 कर दिया। ओके, तो करेस्पॉन्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखिए ए पे डिफाइन है, बी पे डिफाइन है क्या? नो सर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रैप स्टेट बना लेंगे ना। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बी पे मूव करा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए Q1 किस पे डिफाइंड हो रहा है? कौन सा सिंबल है ये? बी। सो यहाँ पे हमने इस पे किसके मूव कराना होगा? ए। ए। व्हाट अबाउट Q2? यस, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड। ए एंड बी पे ये ट्रांजिशन डिफाइंड है ना, तो यहाँ पर कोई सा भी ट्रांजिशन अलग से आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, Q3 की अगर बात करें, बोथ यस, ए एंड बी। सो ए एंड बी। अब सपोज इसे हमने मान लिया Q4, तो यहाँ भी कोई ट्रांजिशन डिफाइन होना चाहिए। यस। फाइन, ए और बी। ए और बी, ये चीज क्लियर है? सबने ऐसे ही बनाया था ना। यस सर। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है देखिए ध्यान से, फाइनल स्टेट्स पे ही चेंज होगा ना, यस और नो? यस सर। वहां देखिए Q माइनस एफ कर रहे हैं, तो आपके पास जितने स्टेट्स हैं, नॉन फाइनल स्टेट्स इसमें कौन कौन से हैं? क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू फोर, और फाइनल स्टेट कौन सा हुआ? क्यू थ्री। Q3। सो व्हाट अबाउट Q माइनस एफ? कौन कौन से स्टेट्स हैं? विच स्टेट्स आर इन दिस सेट Q क्यू माइनस एफ? नॉट, Q क्यू नॉट, नॉट, क्यू वन, Q1, क्यू क्यू टू, Q2, क्यू फोर। Q4. So we have to make these state as the final state for complement of L. तो बना लीजिए जल्दी से, क्या करेंगे? जो आपका फाइनल स्टेट था वो क्या हो गया? नॉन फाइनल स्टेट, और नॉन फाइनल स्टेट्स क्या हो जाएंगे? फाइनल स्टेट्स। So this automata is accepting language L bar। कहने का अर्थ ये, every string on sigma is equal to AB other than, कौन से दो स्ट्रिंग थे? ABA and ABB
are accepted by this automaton. ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो कभी कभी क्या है कि आपके पास क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है। सपोज ये जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था वो पूछते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा that accepts every string on sigma alphabet is equal to a comma b other than aba and abb. फाइन। तो अगर उस तरह से अगर आप सोचते तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो स्मॉलेस्ट जो सिंपलेस्ट वे है उसको आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करते, वो ऑटोमेटा निकाल लेते जिसमें ये एक्सेप्ट हो रहे थे, ए बी ए और ए बी बी, और उसके बाद क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया ना। यस सर। तो ये ध्यान रहेगा सबके। यस सर। So you are having an automata for complement of a particular regular language. So you can say that complement of a regular language is what? Regular. Clear है? यस सर। बाकी लोग? यस सर। Good. Next, intersection. Suppose L1 and L2 are regular. So we are saying that L1 intersection L2 is also regular. ठीक है, आप लोग डीएलडी पढ़े हुए हैं। डिमॉर्गन्स लॉ बताइए क्या कहता है, अगर L1 और L2 है, इसका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या हम लोग कह सकते हैं, L1 बार यूनियन L2 बार। L1 यूनियन को हम लोग प्लस लिख सकते हैं, यस सर। और इसका होल कॉम्प्लीमेंट होता है या नहीं? Yes, sir. यस सर। फाइन। अभी आपने देखा L1 अगर रेगुलर है, L1 बार रेगुलर होगा कि नहीं? यस होगा और नो? सर। यस सर। L2 रेगुलर है, complement of L2 is also, रेगुलर। if L1 bar and L2 bar are regular, then union of these two languages are also regular, यस सर। and if this is regular, then complement of whole thing is also regular. होगा? यस सर। और this is nothing but what? L1 intersection L2। ठीक है, क्या किया इसमें, प्रूफ करना था अगर इंटरसेक्शन को, तो हम लोगों ने कैसे किया? अमन आप बताएं। यस, हेलो। हाँ बोलिए। ये सर पहले L1 और L2 का हम लोग पहले इंटरसेक्शन लिए, फिर उसको डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद L1 कॉम्प्लीमेंट प्लस L2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किए। अगर L1 रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा, वेरी गुड। और इसीलिए हम L1 और L2 इंटरसेक्शन दोनों रेगुलर हो गया। तो ये यूनियन वाला पार्ट अगर छोड़ देंगे तो फिर कंप्लीट रिजल्ट नहीं ना होगा। L1 रेगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो रेगुलर, L2 रेगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज ऑल्सो रेगुलर, ये दोनों रेगुलर हैं तो यूनियन इज ऑल्सो रेगुलर,
और वो अगर रेगुलर है L1 बार प्लस L2 बार, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट थिंग इज ऑल्सो रेगुलर, हेंस L1 इंटरसेक्शन L2 इज ऑल्सो रेगुलर. वेरी गुड. नेक्स्ट, difference. Suppose L and L1 and L2 are two regular languages. तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को? जो L1 में हो L2 में नहीं हो, फाइन, L1 माइनस L2. और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट. यस और नो? यस सर। तो अभी आपने सारे रिजल्ट देखे हैं. L1 रेगुलर है, फाइन, L2 रेगुलर है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ L2 इज ऑल्सो गोइंग टू बी रेगुलर. ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। सो L1 और L2 बार रेगुलर है, तो इंटरसेक्शन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर ऑल्सो रेगुलर. यस सर। Hence L1 minus L2, that is difference of two regular languages, is also regular. Fine. यस सर। चलिए रिवर्सल की बात करते हैं. सपोज एक स्ट्रिंग है A1 A2 टिल AN. ओके, तो रिवर्सल कैसे इसको लिखेंगे? यस, an minus 1, an minus 2 till a1. an minus 1 टिल A1. A2 है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग हुआ, और इस तरह के जितने स्ट्रिंग सपोज L में होंगे, उन सबको अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना, स्ट्रिंग्स. यस और नो? सपोज आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि L क्या है, 0 0 1 और 0 1 है. ठीक है, और मुझे रिवर्सल ऑफ दिस लैंग्वेज फाइंड करना है. तो इस लैंग्वेज में कितने स्ट्रिंग्स हैं बताइए? दो। ठीक है, तो इंडिविजुअल को अगर रिवर्स कर दें तो ये हम लोगों का सेट पूरा मिल जाएगा ना, रिवर्सल वाला. यस सर। तो 0 0 1 रिवर्स करेंगे क्या मिलेगा? 1 0 0। 1 0 0, और 0 1 को रिवर्स किया तो 1 0। 1 0. तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये आपके पास सेट है L जो कि रेगुलर है, तो L ऑफ R भी क्या होगा? रेगुलर होगा. ओके, तो इसके लिए क्या करना है चलिए देखते हैं. Just say, given a language L is L of A for some finite automaton with non-determinism and epsilon transitions, we may construct automaton for L of R. क्या करना होगा उसके लिए देखिए, reverse all the arcs in the transition diagram for A, make the start of A be the only accepting state for the new automaton, create a new start state Q0 with transition on epsilon to all accepting states of A. ओके, तो ये पहले आप लोग लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट खींच के रख लें. रिवर्सल ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटन कैसे बनाएंगे. ओके, तीन स्टेप हैं इसमें. पहला स्टेप क्या कहता है? यस आर्यन? यस सर. फर्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं? सर
उस ट्रांजिशन डायग्राम जितने भी आर रहेंगे सबको रिवर्स कर देंगे। हाँ, सपोज Q0 से Q1 अगर जा रहा होगा तो आपका जब रिवर्सल वाला ऑटोमेटन बनेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, Q1 Q1 से से Q0 जाएंगे। Q0 में कर देंगे। ठीक है, यस फिर सर। क्या कहा, स्टेप 2, इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट कर देंगे सर। केवल इनिशियल स्टेट जो रहेगा वही फाइनल स्टेट होगा जो नया ऑटोमेटन बनेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है थर्ड स्टेप, एक नया स्टार्ट नया स्टेट बना देंगे नल के लिए। से ट्रांजिशन नल के लिए नहीं है, वो जो हम लोगों का ट्रांजिशन होगा जो प्रीवियसली जितने भी एक्सेप्टिंग स्टेट थे, हो सकता था एक होता, हो सकता था मल्टीपल होते, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, जो नया स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे उससे सारे जो पहले वाले एक्सेप्टिंग स्टेट थे उसमें नल ट्रांजिशन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वी हैव टू कनेक्ट ऑल दोज एक्सेप्टिंग स्टेट्स विथ नल ट्रांजिशन। ओके, यस चलिए सर। देखते हैं, एक एग्जांपल लिख लो। यहाँ तक लिख लिया ना सबने? यस सर। चलो लिखो एक ठो ये आपका एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग 01। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बनाया था ना ऑटोमेटन, यस और नो? यस सर। हाँ, ट्रैप स्टेट का यूज करते हुए जल्दी से बना लीजिए। स्ट्रिंग कौन सी है? 01। 01। तो एक इनिशियल स्टेट हमने किया, सपोज यहाँ हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया इसे Q1 से, क्योंकि Q0 हम लोग लिख रहे हैं वहां पे तो कंफ्यूजन ना हो। Q1 यहाँ पे कर दिया, इनिशियल जो है वो आपने क्या करना है, जल्दी से इसे करिए। ओके, काला वाला, काला वाला जो दवाई, ये सब खाने के बाद खा लेगी तो थोड़ी देर में खा लेगी। हो गया? यस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव constructed? Okay, write down in the chat box. जस्ट थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने ऑटोमेटा बनाया उसी के कंसेप्ट में करना है। गुड, फाइन, चलिए देखते हैं। 0, नेक्स्ट, सपोज दिस वन इज Q2, 1 एक्सेप्ट होना चाहिए, Q3, फाइन, ट्रैप स्टेट एक बना देंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ 0 पे डिफाइन है, क्या करेंगे, यहाँ से कौन सा ट्रांजिशन जाएगा, यस 1। यहाँ 1 पे डिफाइन है, क्या करेंगे, 0। 0, वेरी गुड। यहाँ पर कोई डिफाइन है, नो तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 0 0 and 1। वेरी गुड। और यहाँ पर ट्रैप 0। फाइन, तो ये आपका ऑटोमेटन हो गया, किसको एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू 01। 01। अब रिवर्सल की अगर बात करें तो लैंग्वेज करस्पॉन्डिंगली ये ऑटोमेटा क्या कर रहा है, लैंग्वेज ऑफ, अगर ये ऑटोमेटा हम लोग देखें या ए से कहें, इसे रिप्रेजेंट करें तो द स्ट्रिंग इज व्हाट, 01। फाइन, रिवर्सल की अगर बात करना है L ऑफ R तो क्या एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 0। 1 0, वेरी गुड। ठीक है, तो आप जो यहाँ स्टेप्स दिए हैं जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे, ये स्टेप्स क्या कह रहा है।
एल ऑफ आर की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले जो ऑटोमेटा दिया हुआ है उसके स्टेट्स को आप लोग ड्रॉ कर लें, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Q4। ओके, ये ड्रॉ हो गया, यहां तक यस क्लियर है। सर। अब आप देखिए पहला स्टेप क्या कह रहे हैं, रिवर्स ऑल द आर्क्स इन द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर ए। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे Q1 से कहाँ जा रहा था, Q2 Q2 पे, पे। और Q1 से Q4 पे जा रहा था ना। यस सर। तो अब ये आर्क्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स। रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ पे लेवल क्या रहेगा, 0 0, और यहाँ पे क्या लेवल रहेगा, 1। 1। नेक्स्ट Q2 और Q3 की बात करते हैं। Q2 से Q3 जा रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, Q3 से Q2 जाएगा विथ लेवल 1। ओके। Correspondingly, when we talk about Q2 and Q4, so level will be what, Q4, 0। up, अब ये 10-15 मिनट हो जाओ। ओके, लेवल क्या रहेगा यहाँ पे, 0। 0। What about Q4, Q3 लेवल क्या होंगे, 0 1। 0 1। और ये अगर रिवर्स भी किया जाए तो सेम स्टेट पे आएगा ना, यस सर। 0 1। अब ध्यान से देखिए, रिवर्स ऑल द आर्क्स इन द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर ए, ये डन हो गया ना। यस सर। मेक द स्टार्ट ऑफ ए बी द ओनली एक्सेप्टिंग स्टेट फॉर द न्यू ऑटोमेटन। तो यहाँ पर कौन था, Q1 था ना स्टार्टिंग स्टेट, ये सब। यस सर। यस हम सर। लोग फाइनल स्टेट किसको बनाएंगे, Q1 को। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये फाइनल स्टेट बना देना है। ओके, तो सेकेंड स्टेप भी क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ न्यू स्टार्ट स्टेट Q0। एक नया स्टार्ट स्टेट हम लोगों ने क्या किया, Q0 बना दिया। ओके, और करेस्पॉन्डिंगली क्या करना है, ट्रांजिशन कहाँ कहाँ भेजने हैं, जो भी प्रीवियसली एक्सेप्टिंग स्टेट थे। तो प्रीवियस देखिए कौन सा एक्सेप्टिंग स्टेट था, Q3। Q3। तो यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन हो जाएगा, और ये कैसा ट्रांजिशन होगा, एप्सिलॉन। ओके। नाउ यू कैन सी this is going to accept what, 1 0। तो नॉन डिटर्मिनिज्म एंड एप्सिलॉन मूव इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन वी हैव found a finite automaton, so we can say that reversal of a regular language is also regular। रेगुलर। क्लियर है ना यस सर। सबको, यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, होमोमॉर्फिज्म। ये ध्यान से देखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और केवल डिफिनेशन नहीं मालूम होने के चलते लोग इसे छोड़ देते हैं। ओके, a string homomorphism is a function on a strings that works by substituting a particular string for each symbol। ध्यान से समझिएगा, इस डिफिनेशन को आप लोग भी पढ़िए एक बार। प्रभात एक बार रीड करिए। A string homomorphism is a function on strings that works by substituting a particular string for each symbol. ओके, तो क्या इंटरप्रेट हो रहा है इससे, सर हर सिंबल के लिए एक स्ट्रिंग हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरी गुड। देखते हैं, सपोज
एक स्ट्रिंग है आपका लैंग्वेज में, ठीक है, x1 x2 टिल xn, और हर एक के करस्पॉन्डेंस में एक फंक्शन डिफाइंड है, h of x1, h of x2, h of xn। ओके, सो अगर लैंग्वेज आपका डिफाइन है तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म की। तो करेस्पॉन्डिंगली इस स्ट्रिंग की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो होगा h of x1, h of x2 till h of xn। फाइन, सो राइट डाउन, एक लाइन लिख लीजिए, इफ L is a language on sigma, then its homomorphic image is defined as h of L is equal to h of W such that W belongs to L। ठीक है, L क्या है, लैंग्वेज है, डिफाइंड किस पे है, इनपुट अल्फाबेट सिग्मा पे। इसका होमोमॉर्फिक इमेज कैसे डिफाइन होगा, h of L, इंडिविजुअल जो भी स्ट्रिंग्स होंगे इस लैंग्वेज के उसको हम लोगों को होमोमॉर्फिक इमेज में कन्वर्ट कर देना है। ओके, डेफिनेशन क्लियर है ना, सिंबल्स को हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रिंग पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, लिख लिया यहां तक, ये यस सब। सर। ओके, तो एक एग्जांपल देख लीजिए, यस सर। राइट डाउन अ क्वेश्चन, लेट सिग्मा इज इक्वल टू 0 1, सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू 0 1 2 एंड दो अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, सिग्मा और सिग्मा प्राइम। सिग्मा में क्या है 0 1 और सिग्मा प्राइम क्या है 0 1 2। ओके, एंड h of 0 is equal to 0 1, h of 1 is equal to 1 1 2, then find out h of 0 1 0 and homomorphic image of L is equal to 0 0 0 1 0। आ जाएगा, क्वेश्चन लिख लिया, यस। यस सर। तो क्या फाइंड करना है, देखिए h of 0 ये डिफाइंड है, h of 1 डिफाइंड है, मैपिंग कहां से कहां हो रही है, सिग्मा से सिग्मा प्राइम, और ये सिग्मा प्राइम केवल नहीं है, स्ट्रिंग्स डिफाइंड ऑन सिग्मा प्राइम। ओके, तो अल्टीमेटली क्या करना होगा, पहले तो आपको फाइंड करना है h of 0 1 0। तो w की वैल्यू क्या हो गई 0 1 0, इसके करस्पॉन्डेंस में देखिए h of w is what, h of x1 concatenated with h of x2 till h of xn। यहाँ x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 1, x3 की वैल्यू क्या है 0।
तो ये अगर हम लोग फाइंड करें तो ऐसे कर सकते हैं ना, h of 0 1 0 is nothing but concatenation of h of 0 with h of 1 with h of 0. ओके, h of 0 की वैल्यू क्या है? यस, 0 1 0 1 concatenated with 1 1 2 because h of 1 is what? 1 1 2 again 0 1. ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई किसकी? h of 0 1 0. अगेन यहाँ देखिए L दिया हुआ है, दो स्ट्रिंग है इसमें 0 0 एंड 0 1 0. तो आपको क्या फाइंड करना है? होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ L, दैट इज h ऑफ L. पहले स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिक इमेज क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? 0 1 0 0 1 0 1 because h of 0 is what? 0 1. तो इसके करस्पॉन्डेंस में 0 1 आया, अगेन इसके करस्पॉन्डेंस में क्या आया? 0 1 आया. नेक्स्ट 0 1 0, ये अभी आपने निकाला है, जो यू हैव जस्ट डिटरमाइंड दिस थिंग, यस सर, that is 0 1 1 1 2 0 1. Okay, so what you are doing, you are simply substituting a string for a particular symbol. So this way, in this way you are going to find the homomorphism, and this is also regular. अगर ये regular है तो इसके correspondence में एक automata होगा. You are doing nothing but increasing the numbers of alphabets for a particular string, number of symbols in a particular string. तो states बढ़ जाएंगे, लेकिन you are going to get a finite automata for the same. क्लियर है ना? अब होमोमॉर्फिज्म से कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप बना देंगे? यस और नो? यस सर, वेरी गुड. यस सर। अब आप बिना देखे हुए नेक्स्ट स्लाइड बताइए कि इनवर्स होमोमॉर्फिज्म क्या होगा? सर इनवर्सली सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब आपके पास स्ट्रिंग रहेगा ना, और उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डेंस में आपको एक सिंबल सब्स्टिट्यूट करना. यस सर, उसकी जगह पे हम लोग मतलब अगर यहाँ आप देखें ध्यान से, h ऑफ L डिफाइंड है, ठीक है, तो h इनवर्स L क्या होगा? करस्पॉन्डिंगली आप लोग जल्दी से बता दीजिए. अगर क्लियर है तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं. 0 0 और 0 1 0. 0 1 वेरी गुड. क्या है? h ऑफ L आपका 0 1 0 1 है. अगेन 0 1 1 1 2 0 1. आपको क्या करना था? h ऑफ इनवर्स फाइंड करना था. दैट इज यू हैव टू फाइंड द L, ओरिजिनल L, दैट इज नथिंग बट 0 0 एंड 0 1 0. So let us see the definition. Suppose H is a homomorphism from some alphabet sigma to strings in another possible the same alphabet sigma prime. Let L be a language over alphabet sigma prime, then H inverse L, read as H inverse of L, is the set of strings W in sigma star such that HW is in L. Okay, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, होमोमॉर्फिज्म एंड इनवर्स. फाइन, क्लियर है? अब रेगुलर लैंग्वेज की जो क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं वो अब आप, आई थिंक कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजीली प्रूव, इजीली कंस्ट्रक्ट द फाइनाइट ऑटोमेटा.